सभी को नमस्कार. Good afternoon. Today, I would like to take this opportunity to speak about the profound relationship between yoga, Kathak, and more broadly, Indian classical dance. At first glance, yoga and dance may appear to be two distinct disciplines, one associated with physical, meditation, self-realization, and other with the artistic performance and expression. However, when we explore their deeper essence, we discover that they are intimately connected. Both yoga and classical dance are ancient Indian traditions that seek harmony between body, mind, breath, and spirit. While yoga guides an individual towards self-awareness, inner balance, dance transforms this awareness into artistic expression. Together, they create a powerful path of physical excellence, mental clarity, emotional depth, and spiritual growth. The relationship between yoga and dance has existed since ancient times. This connection is beautifully symbolized by Lord Shiva, who is revered both as Adi Yogi, the first yogi, and Nataraj as cosmic dancer. Through this symbolism, Indian philosophy reminds us that movements and stillness, dance and meditation are not opposites, but complementary aspects of the same journey. Ancient texts such as Natya Shastra and Yoga Sutra of Patanjali reveal common principles of discipline, concentration, body awareness, and spiritual development. Temple sculptures across India further demonstrate this relationship, depicting dances in posture that closely resembles to yogic asanas. Many mudras described in Abhinay Darpan and Natya Shastra are also found in yogic traditions, demonstrating the common foundation shared by both disciplines. In today's world, almost everyone recognizes the benefits of the yoga. Yet, classical dancers have often been practicing yogic principles without formally identifying them as yoga. Imagine the transformation that could occur if dancers engage with these principles and practices consciously and systematically. अक्सर लोगों को ये लगता है कि योग केवल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है. वास्तव में नर्तकों में लचीलापन पहले से ही होता है. हालांकि ये भी सच है कि सभी नर्तक समान रूप से लचीले नहीं भी होते हैं. तो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, योग उन्हें विकसित करने में मदद करता है. लेकिन योग का महत्व नृत्य में केवल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं और अधिक गहरा है. एक नर्तक का शरीर, एक डांसर का शरीर उसका सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है. जिस प्रकार एक संगीतकार अपने वाद्य को बजाने से पहले ट्यून करता है, उसी प्रकार योग हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने का कार्य करता है. जब शरीर, श्वास, मन संतुलित होते हैं, तब नृत्य में सहजता, सौंदर्य, नियंत्रण और लय दिखाई देती है. जब ये आंतरिक ट्यूनिंग नहीं होती है, तो नृत्य में कहीं ना कहीं असंतुलन, थकान और बिखराव दिखाई दे सकता है. इसीलिए योग नर्तक को अपने इस इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार ट्यून करना सिखाता है कि उसका नृत्य भी सुरीला, मधुर, संतुलित और प्रभावशाली बन सके. योग का सचेत रूप से अभ्यास करने से नर्तक केवल एक अच्छा परफॉर्मर ही नहीं बनता, बल्कि उसमें बैलेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, पोस्चर करेक्शन और बॉडी अवेयरनेस जैसी अनेक क्षमताएं विकसित होती हैं. नृत्य क्योंकि एक विजुअल आर्ट है, तो इसलिए शरीर की रेखाएं, मुद्रा, अलाइनमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है. योग इन सभी पक्षों को निखारने में सहायता करता है. योग और नृत्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है श्वास, प्राणायाम. प्राणायाम और श्वास संबंधी अभ्यासों के माध्यम से नर्तक अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीखता है. विशेष रूप से कथक में श्वास का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कथक डांसर मंच पर से सीधे दर्शकों से संवाद स्थापित करता है. एक बंदिश की पढ़ंत करता है और तुरंत जाके उसको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है. तो उसके लिए ब्रेथ कंट्रोल, स्टेमिना और मानसिक सजगता अत्यंत आवश्यक है. योग और प्राणायाम नर्तक को एक क्षमता प्रदान करते हैं कि वो बिना थके, बिना विचलित हुए अपनी प्रस्तुति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके. योग का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है कंसंट्रेशन. जब हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो मन और स्थिर
और अधिक स्थिर और एकाग्र हो जाता है और यही एकाग्रता बाद में नृत्य में दिखाई देती है, चाहे वो तत्कार हो, लयकारी हो, चक्र हो या अभिनय हो। योग की साधना से विकसित हुई जागरूकता नृत्य को और अधिक गहराई प्रदान करती है। हमारे कई महान नृत्याचार्य और दिग्गज कलाकारों को देखें तो पाएंगे कि वो केवल मात्र एक उत्कृष्ट कलाकार ही नहीं थे, बल्कि अपने भीतर एक योगी की चेतना भी रखते थे। शायद यही कारण है कि आज भी उनकी कला लोगों के हृदय में, हमारे हृदय में जीवित है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि उन कलाकारों में ऐसा कौन सा आकर्षण था, ऐसी कौन सी शक्ति थी जो गहराई से हृदय को छू जाती थी। शायद उसका कारण उनका आंतरिक संतुलन, साधना और यौगिक दृष्टि भी थी। योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, ये हमें आचार, व्यवहार और विहार की भी शिक्षा देता है। जीवन में संतुलन, अनुशासन, स्थिरता लाता है। ये गुण किसी भी कलाकार को लंबे समय तक अपने क्षेत्र में बने रहने को, निरंतर सीखने को और समाज की सेवा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अभिनय के संदर्भ में भी योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग में प्रत्याहार को बाहरी जगत से भीतर की यात्रा का सेतु माना गया है। ठीक उसी प्रकार एक नर्तक को एक भाव से दूसरे भाव में जाने में, एक पात्र से दूसरे पात्र में और कुछ ही क्षणों में प्रवेश करने की क्षमता प्रदान करता है। अभिनय करते समय कलाकार को कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी क्रोध, कभी भक्ति, इन भावों को व्यक्त करना होता है और योग द्वारा विकसित आंतरिक जागरूकता और मन पर नियंत्रण इस परिवर्तन को और अधिक सहज और प्रभावशाली बना देते हैं। इसके लिए केवल टेक्निक ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इमोशनल अवेयरनेस और मेंटल क्लैरिटी भी ज़रूरी है। इस प्रकार योग केवल नृत्य को बेहतर बनाने का साधन ही नहीं है, बल्कि ये नर्तक के संपूर्ण व्यक्तित्व, कला और जीवन को समृद्ध करने वाली गहन साधना है। एक डांसर का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। उसकी यात्रा में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ उसे शारीरिक चोटों, भावनात्मक उतार चढ़ाव, असफलताओं, मानसिक तनाव और आत्मसंदेह का भी सामना करना पड़ता है। कई बार मेहनत के बावजूद भी परिणाम नहीं मिलते और कभी कभी परिस्थितियाँ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। आज के युग में, जो तेज़ी से बदलता हुआ युग है, इसमें धैर्य बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में योग नर्तक को केवल एक शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। योग हमें धैर्य, शांति, दृढ़ता और सहन शक्ति विकसित करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि योग हमें कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखना सिखाता है। हमें याद दिलाता है कि सफलता और असफलता दोनों ही स्थायी नहीं हैं। नियमित योगाभ्यास से नर्तक के भीतर एक ऐसा संतुलन विकसित होता है जो उसे चुनौतियों के बीच में भी निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा देता है। अक्सर कहा जाता है कि डांसर का जो परफॉर्मिंग कैरियर है वो बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन योग के द्वारा डांसर अपने शरीर और मन को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। अल्टीमेटली द हाईएस्ट गोल ऑफ योग एंड डांस इज यूनियन. A dancer gradually learns to dissolve the limitation of personal identity and become one with the dance itself. In such moment, even physical beauty becomes secondary. What remains visible is the artist and their art. This state is profoundly spiritual. Such an experience transcends the words and cannot be fully described. It can only be felt, lived through the practice of dance and yoga together. भारतीय कला परंपरा में इस अनुभव को रसानुभूति कहा गया है। ऐसा आनंद जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। एक नर्तक अपने अभ्यास के माध्यम से शरीर की सही स्थिति, संतुलन, श्वास पर नियंत्रण, एकाग्रता, अनुशासन आदि भावों की अभिव्यक्ति विकसित करता है और यही सभी गुण योग के भी महत्वपूर्ण अंग हैं। चाहे जटिल लयकारी हो, चक्कर लगाने हो या अभिनय के माध्यम से विभिन्न भावों को, विभिन्न पात्रों को व्यक्त करना हो, नर्तक को हर समय पूर्ण रूप से सजग और एकाग्र रहना पड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो नृत्य स्वयं एक गतिशील ध्यान है, यानी मूविंग मेडिटेशन है। कथक में जब भी कोई कठिन कॉम्पोजिशन सम पर आकर समाप्त होती है तो एक आत्मिक आनंद मिलता है। इसी तरह से योगासन में भी जब हम कोई आसन पूरी अवेयरनेस और बैलेंस और स्टेबिलिटी के साथ करते हैं तो भी भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है। कथक और योग दो अलग अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
योग नर्तक को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है, जबकि कथक उस आंतरिक संतुलन को बाहरी अभिव्यक्ति देता है। अल्टीमेटली दोनों मिलकर मूवमेंट को मेडिटेशन और परफॉर्मेंस को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। दोनों ही स्थितियों में बॉडी, माइंड, ब्रेथ, कॉन्शियस एक साथ हारमोनियसली काम करते हैं। यही है आनंद और योग और डांस और कथक, इन दोनों का सार। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और योग के संबंध में जो भी मैं शब्दों में व्यक्त कर सकती थी, उसको मैंने अपनी कोरियोग्राफी कथा योग में बांधने का, पिरोने का प्रयास किया है, परंतु वास्तव में इसे समझने के लिए इसको जीना आवश्यक है। कथा योग एक्सप्लोर्स द डीप कनेक्शन बिटवीन कथक एंड योग। This presentation begins with the verse from the Bhagavad Gita, chapter 2, verse 48. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjay siddhi siddhyo sama bhutva samatvam योग उचयते। यानी हे अर्जुन, तुम सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित होकर कर्म करो। इसी समानता की स्थिति को योग कहा गया है। इस प्रस्तुति में कथक नृत्य की विविध तकनीकों, अष्टांग योग के 8 अंगों को गूंथा गया है। ओम के उच्चारण से प्रारंभ होकर संतुलन स्थिरता के लिए आसनों का प्रयोग, श्वास की सजगता, लयबद्ध संरचनाओं के माध्यम से सम तक पहुंचने की यात्रा, ये सभी योग और नृत्य के गहरे संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। मन और इंद्रियों का विभिन्न दिशाओं में भटकना और यौगिक साधनाओं के द्वारा पुनः उन्हें केंद्रित करना और नियंत्रित करना भी इस कोरियोग्राफी का महत्वपूर्ण पक्ष है। अंततः तत्कार के निरंतर अभ्यास द्वारा साधक उस परम आनंद की अवस्था की ओर अग्रसर होता है, जहां वो स्वयं को समग्र सृष्टि के साथ एकाकार अनुभव करता है। द फाइनल सेगमेंट तत्कार, द बेसिक फुटवर्क ऑफ कथक डांस एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। थ्रू कंटिन्यूस रिदमिक प्रैक्टिस, द डांसर बिकम्स फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मूवमेंट। Gradually, the distinction between the dancer and the dance disappears, leaving only rhythm, awareness and presence. ओम के इस नाद से इस परम आनंद की अनुभूति तक की यात्रा ही कथा योग का सार है। ये केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि ध्यान, साधना, नृत्य और योग के संगम का एक जीवंत अनुभव है। कथा योग समर्पित है आदि योगी शिव को, जिन्हें प्रथम योगी तथा ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता रहा है। उनकी चेतना, लय और आध्यात्मिक ऊर्जा इस संपूर्ण संरचना की प्रेरणा है। इट्स कंसीव्ड, conceptualized and choreographed by me. Music by Shri Shiv Shankar Ray, and dancers are Sakshi, Vidula, Mitali और अक्षिता। कथा योग प्रारंभ करने से पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SNA, ICH, विशेष रूप से श्री सुमन कुमार जी को और श्री राजू दास जी को इस अवसर को प्रदान करने के लिए। नमस्कार।
प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टो जयति योग विद्या जयति योग विद्या जयति योग विद्या सहस्रादि संवत्सरपूर्वं नरज्ञान उद्धारणाय समर्पितम् आदियोगिनाद्यं सप्तऋषिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् आदियोगिन नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर आदियोगिन नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽवलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तुते जन्म मरणोऽवलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तुते ज्ञानशृङ्गवृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्म अङ्गम् आदियोगिनम्
महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथिवीतेजोदकं वायुवशीकृतमाकाश महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् निर्गुणं त्रिगुणं परं रुद्रहर सदाशिवं बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् निर्गुणं त्रिगुणं परं रुद्रहर सदाशिवं बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं